اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول النبی الکریم 12 وفات 12 ربیع الاول وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اس تاریخ کے بارے میں الگ الگ رائے ہے۔ تحقیق کرنے والوں کے نزدیک آپ کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں، جو ریسرچ کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ عوام میں 12 ربیع الاول مشہور ہے۔ عوام میں 12 ربیع الاول مشہور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز پیر کو ہوئی۔ وفات کے بارے میں سب کی ایک رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی اور 11 ہجری سن تھا اور روز پیر کا دن تھا۔ ربیع الاول کے مہینے میں، یہ ربیع الاول ہی کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، پیدا ہونے کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کم ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تفصیلی حالات حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تفصیلی حالات آپ کی وفات کے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ الرحیق المختوم سیرت النبی پر ایک مشہور کتاب ہے، ایک کتاب کا نام ہے یہ، جو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے۔ اسی کتاب سے میں وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش کر رہا ہوں۔ جب دین کی دعوت مکمل ہو گئی اور پورے عرب پر اسلام چھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول چال اور رہنے سہنے میں کچھ تبدیلیاں ظاہر ہونے لگیں، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ جب دین مکمل ہو گیا، سارے عرب پر اسلام چھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول چال میں، آپ کے رہنے سہنے میں کچھ تبدیلیاں ظاہر ہونے لگیں، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ 29 صفر بسپر 9 صفر مہینے کا نام، سن 11 ہجری پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں آپ کے سر میں درد ہونے لگا اور آپ کو بخار شروع ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی شروعات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ ایسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن نماز پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن ہے۔ 13 یا 14 دن آپ پڑے رہے مرض کی حالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج
रोज़ बरोज़ बिगड़ती गई। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में मुंतकिल हो गए। एक एक दिन एक एक बीवी के हुजरे में आप रहते थे। जब आपकी हालत ऐसी हो गई, मर्ज़ की हालत, तो सबकी इजाज़त लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुजरे में, उनके कमरे में मुंतकिल हो गए, आ गए। वफ़ात से 5 दिन पहले बुखार बढ़ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ भी बढ़ गई और आप पर गशी तारी होने लगी। गशी, बेहोश होने लगे, बार बार गशी तारी होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर मुख्तलिफ़ कुओं के 7 मुश्कीज़े पानी बहा दो। मुश्कीज़े वो चमड़े के थैले रहते, उसमें पानी भरते, देखे होंगे तुम्हें। तो मुझ पर अलग अलग कुएं का पानी लेकर 7 मुश्कीज़े मेरे ऊपर बहा दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लगन में बिठाकर, एक बड़े बर्तन में बिठाकर पानी आप पर बहाया गया। 7 मुश्कीज़े उंडेल दिए गए आप पर। आपकी तकलीफ़ कुछ कम हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद आए, सर पर पट्टी बंधी थी, मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया। ठहर नहीं सकते थे, बैठकर, हमेशा ठहर कर खुतबा देना आपका तरीक़ा था, मगर चूँकि आप ठहर नहीं सकते थे अपने मर्ज़ की वजह से, इस वास्ते मिंबर पर बैठकर खुतबा दिए। मस्जिद भर कर सहाबा कराम मौजूद थे। सबको मालूम हो गया आपकी हालत ऐसी है, तो मस्जिद भर गई सहाबा कराम से। मस्जिद भर कर सहाबा कराम मौजूद थे। सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की मार हो। उन्होंने अपने अम्बिया की ख़बरों को मस्जिद बना लिया, यानी ख़बरों को सजदा करने लगे। कौन? ईसाई और यहूदी। तो अल्लाह की लानत हो उन पर, उन्होंने ऐसा किया। तो इसका मतलब क्या है? तुम ऐसा ना करना, ख़बरों को सजदा ना करना, चाहे वो नबी की ख़बर ही क्यों ना हो। तो आपने फरमाया कि यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की मार हो। उन्होंने अपने अम्बिया की ख़बरों को मस्जिद बना लिया, यानी ख़बरों को सजदा करने लगे। मुअत्ता इमाम मालिक में है, ये भी हदीस की किताब है। मुअत्ता इमाम मालिक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरी ख़बर को बुत ना बनाना। जैसा बुतों के सामने सिजदा करते हैं मुशरिकीन, मेरी ख़बर के सामने ऐसा ना करना। मेरी ख़बर को बुत ना बनाना कि उसकी पूजा करने लगो। ये इमाम मालिक की किताब मुअत्ता में रिवायत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने किसी को कोड़ा मारा हो तो वह आए और बदला ले। मैंने किसी की बेआबरू की हो, किसी की इज़्ज़त कम की हो या किसी की बेइज्जती की हो, तो वह आए और बदला ले। इसके बाद आप मिंबर से नीचे आए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर मिंबर पर गए और अपने पहले कही हुई बातें फिर कहीं। आपके बार बार कहने पर एक शख्स ने कहा कि आपके ज़िम्मे मेरे 3 दिरहम बाकी हैं। आपने फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि इन्हें अदा कर दो। इसके बाद अंसार के बारे में फ़रमाया, मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ क्योंकि वो मेरे दिल जगर हैं। अंसार मदीने के रहने वाले, मक्के से जो हिजरत करके आए उनको मुहाजिरीन बोलते, और उनकी जो मदद करे मदीने वाले, उनको मदद करने वाले अरबी में अंसार, मुहाजिरीन की मदद करने वाले, वो नाम से मशहूर हो गए उन्होंने।
مکے سے آنے والے مہاجرین کے نام سے اور مدینے کے مسلمان انصار کے نام سے۔ تو ان انصار کے بارے میں آپ وصیت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ میرے دل جگر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو دنیا کو پسند کرے یا اللہ کو۔ تو اس بندے نے اللہ کو پسند کر لیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بات کو سمجھ گئے اور رونے لگے۔ آپ کی بات سمجھ گئے۔ بہت سارے دوسرے صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، کون سے کہ ایک بندے کو دیا سمجھے انہوں۔ حضرت ابو بکر سمجھے کہ یہ حضور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس آئے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ کر رونے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے، مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے۔ میری مسجد میں دوسروں کے سب دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ چھوڑ دو۔ مسجد نبوی میں کئی صحابہ کے دروازے کھلتے تھے، صحابہ کے گھر مسجد کو لگ کو تھے، ان کا ایک گھر باہر جانے کا تھا اور ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ ایسے جو ہے کئی صحابہ کے گھر تھے جن کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے، نماز کے لیے وہ دروازے سے مسجد میں آتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ مسجد نبوی کے سب دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی وہاں ایک عارضی گھر تھا، ایک ٹیمپرری گھر تھا مسجد کے قریب، مسجد سے لگ کر اس گھر کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ ان کا اصل گھر مسجد نبوی سے کافی دور تھا حضرت ابو بکر کا۔ وفات سے 4 دن پہلے جب کہ آپ سخت تکلیف میں تھے، آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی لوگ تھے، حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں ہیں، تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے۔ کون بولے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ دوسرے جو ہے لوگ بولے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے ہیں، دے ان کو لکھنے کے واسطے میں۔ تو تکرار ہونے لگی صحابہ میں، وہ کچھ بولتے یہ کچھ بولتے، آپس میں جو ہے تکرار ہونے لگی، اختلاف پڑ گیا لوگوں میں اور گڑبڑ ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں کیں۔ ایک وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ یہود اور نصارہ جو عرب میں ہیں ان کو عرب سے نکال دینا، عرب میں کوئی مشرک اور کوئی جو ہے غیر اللہ کو ماننے والا، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا نہ رہے، یہ وصیت کی آپ نے۔ مرض کی شدت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 4 دن پہلے تک تمام نمازیں خود پڑھائیں۔ اتنی تکلیف رہنے کے باوجود بھی 4 دن تک، ابھی وفات کو 4 دن ہے، تب تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیں خود پڑھائیں۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، یہ تک معلوم ہے۔
उस वक़्त पर मगरिब की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह वल मुरसलात पढ़ी। लेकिन इशा के वक्त आपकी तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि मस्जिद नहीं जा सके नमाज़ पढ़ाने के लिए। मगरिब में पढ़ाए, इशा की नमाज को नहीं जा सके। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है, बुखारी और मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। शायद आप पर गशी तारी हो गई थी। फिर जो है होश आया तो पूछे नमाज़ पढ़ ली है क्या लोग। इशा की नमाज का वक्त हो गया था, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। हमने कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया कि मेरे लिए लगन में पानी रखो। आपने गुस्ल फरमाया, फिर उठना चाहा मगर आप पर गशी तारी हो गई। इफाक़ा हुआ, होश आया तो आपने फिर पूछा क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। हमने कहा कि नहीं, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर आप पर गशी तारी हो गई। तो ऐसी हालत में भी नमाज का ख्याल, आपको नमाज की अहमियत है। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहलवा भेजा कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साला मदनी ज़िंदगी में ये पहली बार हो रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे और कोई और मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ा रहा था। 10 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात में 17 नमाज़ें पढ़ाईं। 17 नमाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हाल में, मर्ज़ की हाल में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 17 नमाज़ें पढ़ाईं। वफ़ात से 1 या 2 दिन पहले, हफ्ता या इतवार के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम का सहारा लेकर ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद आए। इस तरह कि आपके पाँव ज़मीन पर घिसट रहे थे, चल भी नहीं सकते थे। दोनों के जो है ऊपर हाथ रखकर आए, उनकी जो है वो चल जा रहे थे और 2 के सहारे से मस्जिद में आए, पाँव ज़मीन पे घिसट रहे थे। ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद आए। इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ज़मीन पर घिसट रहे थे। उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज़ पढ़ा रहे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि पीछे ना हटें, इशारे से बोला कि पीछे ना हटें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाजू में बिठा दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को तकबीर सुना रहे थे। नमाज की इमामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। चूँकि आवाज़ आपकी ऊंची नहीं थी, इस वास्ते अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमीदा वगैरह हज़रत अबू बकर बोल रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनकर। तो तकबीर हज़रत अबू बकर सुना रहे थे। ये बुखारी की रिवायत है। वफ़ात से 1 दिन पहले इतवार के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम ग़ुलामों को आज़ाद फरमा दिया। उनके जितने भी ग़ुलाम थे, नौकर थे, सबको क्या है, आज़ाद कर दिए, तुम सब फ्री हो। पास में 7 दीनार थे, पैसे, सोने के सिक्के,
साथ घर में रखे थे उन्हें सदका कर दिया, खैरात कर दिया। अपने हथियार मुसलमानों को हिबा कर दिए, तलवार वगैरह ढाल जो थी आपकी वो जो है मुसलमानों में बांट दिए। कौन जहाँ थे सामने थे उनको जो है वो हिबा कर दिए, तोहफे में दे दिए, यानी अपने पास कुछ नहीं रखना चाहते थे आप। रात में चिराग जलाने के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तेल पड़ोसी से उधार लिया। घर में चिराग जलाने तेल भी नहीं था, बाजू से पड़ोसी से तेल उधार लेकर चिराग जलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िराह एक यहूदी के पास गिरवी थी। ज़िराह बोले तो जंगी लिबास, वो जंगी लिबास रहता ना, लहवे के संकलियाँ का लिबास, तलवार का मार पड़े तो भी जो है वो उसमें ज़ख़म नहीं होना, तो उनका जो है वो ज़िराह बोलते उसे। ज़िराह थी आपकी, तो आपने अपनी ज़िराह, उनकी जो ज़िराह थी पैगंबर की, वो गिरवी थी एक यहूदी के पास। पैसों की ज़रूरत थी तो गिरो रख कर पैसे लिए थे। एक यहूदी के पास 3 सा जौ के इवज़ रहन रखी हुई थी। जौ बोले तो बार्ली को बोलते, बार्ली जौ। 3 सा बोले तो तकरीबन 70.5 केजी, 70.5 केजी जौ लेकर वो जो है गिरो रखे थे। ये थी अरब के बेताज शहंशाह के घर की हालत। ये सब इस वास्ते बोल रहे हैं कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत क्या थी। तमाम अरब आपके कब्ज़े में था। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से माली गनीमत, ढेरों माली गनीमत मदीना आ रहा था, मगर आपके घर में ऐसी गरीबी थी। ये थी अरब के बेताज शहंशाह के घर की हालत, जबकि ढेरों माल गनीमत के तौर पर हर तरफ से मदीने आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का आखिरी दिन सही बुखारी में है कि पीर के दिन सहाबा किराम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इमामत फरमा रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के हुजरे का पर्दा हटाया, नमाज़ पढ़ने वालों को देखा और मुस्कुरा दिए, खुश होकर मुस्कुरा दिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों को देखकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हटने लगे और समझे कि आप नमाज़ पढ़ाने के लिए आना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर नमाज़ पढ़ने वाले सहाबा कराम इस कदर खुश हुए कि आपसे मिलने के लिए आना चाहते थे। सब भी बेइख्तियार सब जो है नमाज के हालत में भी आपसे मिलने आना चाहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के इशारे से नमाज पूरी करने के लिए इशारा किया, आओ नहीं नमाज जारी रखो, नमाज पढ़ो, इशारे से बोल दिया। फिर हुजरे का पर्दा गिरा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी दीदार था जो सहाबे कराम ने किया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी दूसरी नमाज का वक्त ना आया। बुखारी ही में है कि दिन चढ़े आपने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनके कान में कुछ कहा, वो रोने लगीं। आपने उन्हें फिर बुलाया और उनके कान में कुछ कहा तो वो हंसने लगीं। बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के पूछने पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पहले कहा कि वो इस मर्ज़ में वफ़ात पा जाएंगे। ये सुनकर वो रोने लगी। फिर आपने दोबारा बुलाकर हज़रत फ़ातिमा से कहा कि मेरे घराने में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। ये सुनकर आप खुश होकर हंसने लगीं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये खुशखबरी, ये बिशारत भी दी कि वह सारी दुनिया की ख़वातीन की सैयदा हैं, सैयदा ख़वातीन जन्नत, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं तुम। ये खुशखबरी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दी। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकलीफ़ में थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु बोल पड़ी, हाय अब्बा जान की तकलीफ़। आपने फरमाया, तुम्हारे अब्बा जान पर आज के बाद कोई तकलीफ़ नहीं, ये आखिरी तकलीफ़ है तुम्हारे अब्बा की। ये सही बुखारी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर चूमा और उनके बारे में खैर की वसीयत की। अपने दोनों नवासों को बुलाकर उन्हें प्यार किया। अज़वाज मुतहरात को बुलाया, अपनी बीवियों को बुलाया और उन्हें नसीहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ बढ़ती गई। उस जहर का असर भी ज़ाहिर होने लगा जिसे आपको खीबर में खिलाया गया था। खीबर में जो जहर बकरी के शाने में मिलाकर दिया गया था, उसका असर अब होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ आयशा, खीबर में जो खाना मुझे दिया गया था उसकी तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। उस जहर के असर से मेरी रगे जान कटी जा रही है। बुखारी शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भी नसीहत फरमाई कि अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, यानी नमाज और तुम्हारे ग़ुलाम। सही बुखारी। नमाज की वसीयत, नमाज की अहमियत, नमाज का कितना ख्याल था हुज़ूर को, ये तमाम बातों से ज़ाहिर होता है। फिर निज़ा की हालत शुरू हुई, सकरात की हालत, निज़ा। फिर निज़ा की हालत शुरू हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी अपने ऊपर टेक लगवा दी, उठा को जो है उसे अपने टेक लगा दिए। वो कहती हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि अल्लाह की एक नेमत मुझ पर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हुजरे में मेरी बारी के दिन मेरे सीने से टेक लगाए हुए वफ़ात पाई। ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर, ये मेरी ख़ास अल्लाह की इनायत है। उस वक्त वहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान मौजूद थे। उनके हाथ में मिसवाक थी। आप मिसवाक को देख रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपसे पूछा कि मिसवाक ले लूँ? आपने सर के इशारे से हाँ फरमाया। आप बात नहीं कर सकते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मिसवाक को चबाकर नरम करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आपने मिसवाक की। आपके सामने कटोरे में पानी था। आप पानी में दोनों हाथ डालकर अपने चेहरे पर मलते जाते थे और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत की सख्तियाँ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत की सख्तियाँ हैं। ये बोलते थे, कटोरे में हाथ डालते, मुंह पर जो है पानी फेर लेते थे। मिसवाक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाई, छत की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हिल रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कान लगाकर सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, उन अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ जिन्हें तूने इनाम दिया, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर और मुझे रफ़ीक़ आला में पहुंचा दे। ऐ अल्लाह, ऐ रफ़ीक़ आला। सही बुखारी में है ये। उसी वक्त हाथ झुक गया और आप
रफ़ीक़ आला से जा मिले। हाथ ऊपर उठाकर उंगली से आप ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते थे, हाथ झुक गया और जो है आपकी वफ़ात हो गई, आप रफ़ीक़ आला से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख़ 12 रबीउल अव्वल थी, सन 11 हिजरी था, पीर का दिन था और चाश्त का वक्त था। सूरज ऊपर जो है आ गया था, धूप छा गई थी, चाश्त का वक्त था, सुबह सूरज चढ़ने का वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल 4 दिन थी। 60 पर 3 साल 4 दिन आपकी उम्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की ख़बर सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के होश उड़ गए। वो मस्जिद नबवी में सहाबा किराम के दरमियान मौजूद थे, मस्जिद भर कर सहाबा थे, हज़रत उमर भी वहाँ मौजूद थे। जब ये ख़बर मस्जिद में पहुँची तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसी हालत में थे कि खड़े होकर कहना शुरू किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं हुई है, बल्कि आप अपने रब के पास गए हैं और फिर वापस ज़रूर पलट कर आएंगे, ये बोलना शुरू करे। ये इब्न हिशाम की रिवायत है। एक और रिवायत यह है कि इस मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो कोई कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। आपे से बाहर हो गए थे, हैरान परेशान थे, तलवार निकाल कर ये बोलने लगे कि ख़बरदार जो कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई कहेगा, मैं उसे मार दूँगा। ये बोलते थे, मस्जिद में फिरते थे और लोगों को बोलते थे कि आपकी वफ़ात नहीं हुई है, आप अल्लाह के पास गए हैं और फिर वापस लौट आएंगे। तो ऐसी कैफियत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर तारी हो गई। इधर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी से दूर अपने मकान से घोड़े पर सवार आए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 1 हफ़्ते से मस्जिद नबवी ही में थे। उनका घर तो बहुत दूर था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत की वजह से 1 हफ़्ते से उन्होंने वहीं थे मस्जिद में। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा उठाकर मुस्कुराते देखा तो उनको इत्मीनान हुआ और अपने घर चले गए। हुज़ूर की हालत अब ठीक हो रही है, इस वास्ते 1 हफ़्ते से नहीं थे, घर नहीं गए थे, इस वास्ते वो घर गए थे। वफ़ात की ख़बर सुनकर अपने मकान से घोड़े पर सवार होकर फ़ौरन मस्जिद नबवी आ गए। उतर कर सीधे हज़रत आयशा के हुजरे में गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म पर धारदार यमनी चादर उड़ा दी गई थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चादर हटाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमा और रो पड़े। फिर मस्जिद में आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त भी लोगों से बात कर रहे थे, पहले जो बोल रहे थे वही बात बोल रहे थे। हज़रत अबू बकर ने उनसे कहा, उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। वो नहीं बैठे। मस्जिद में मौजूद सहाबा किराम हज़रत अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुए। अब तक हज़रत उमर की सुन रहे थे, हज़रत अबू बकर आने के बाद उनकी सुनने लगे। सही बुखारी में है कि उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अम्मा बाद मन कान मिनकुम याअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन ख़दमात व मन कान मिनकुम याअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत क़ालल्लाहु तआला व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इम मात औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये छोटा सा खुतबा दिए वहाँ पर। इसका तर्जुमा ये है, ये बुखारी शरीफ में है, अम्मा बाद तुम में से जो मोहम्मद की बंदगी करता था वो जान ले
کہ محمد وفات پا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم میں سے جو اللہ کی بندگی کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت پڑھے، یاد رکھو مسجد میں صحابہ بھر کر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ باتیں کہہ رہے تھے، ایسے موقع پر حضرت ابوبکر اپنی بات پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹا پلٹ جاؤ گے، دین اسلام چھوڑ جاؤ گے؟ اور جو الٹا پلٹ جائے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ تو یہ آیت پیش کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب کو جتا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ وفات پا چکے ہیں، تم حقیقت کو قبول کرو، سب فنا ہونے والے ہیں، سب کو موت آنے والی ہے، اللہ ہی ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور وہ آیت پڑھے جس کا ترجمہ میں پڑھ چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سن کر سب کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ ابوبکر سے یہ آیت سن کر میں حیران رہ گیا، اور وہ زمین پر گر پڑے، ان کو ہوش آیا، سمجھ لیے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ منگل کے روز، پیر کے روز یہ سب ہوا، منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے، دوسروں کے ساتھ یہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا، 3 چادروں میں، یمن سے آئے یمنی چادروں میں آپ کو کفنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی اٹھا کر اسی کے نیچے قبر کھود دی گئی۔ وہ بغلی قبر تھی، بغلی قبر، 2 رقم کے قبر ہوتے، ایک باکس کی طرح، دوسرا قبر کے بغل میں ذرا کھود کو میت کو اندر کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی قبر تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ نے حجرے میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی، کوئی امام نہ تھا، 10 صحابہ آتے گئے، نماز پڑھتے گئے، باہر جاتے گئے، دوسرے آتے گئے، اس طرح 10 تھوڑے تھوڑے کر کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھے۔ سب سے پہلے آپ کے خاندان کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگر کا پورا دن نکل گیا۔ چہارشنبے کی رات آپ کی تدفین ہوئی، دفن آپ کو چہارشنبے کی رات وہ آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔